One and all, it is my pleasure and privilege to have all of you for the third day of the Vivekanand Youth and Leadership Convention. The presence of distinguished individuals and the energy of our vibrant audience makes this occasion truly special. Uh, so, may I please invite Sri Jain and Professor Sandeep sir for lighting the lamps on stage and for giving Pushpanjali to Swamiji. Thank you so much, sir. Uh, we are honored to have with us Shri Bimal Kumar Jain, a person of immense knowledge, experience, and accomplishment who has been bestowed with the prestigious Padma Shri Award. Sir, we are deeply grateful for your presence and eagerly await the pearls of wisdom you are about to share with us. Born and brought up in Munger, Bihar, Shri Jain secured graduation from Munger, MCom and LLB from Patna University. Shri Jain is the founder secretary of Bharat Vikas Viklang Nyas, which has been working for the rehabilitation and empowerment of physically disabled in Bihar. As founder secretary, Sri Jain has made selfless, persistent efforts dedicated to suffering humanity with a vision to eradicate problems and sufferings of all those in need. Under the guidance of Sri Jain, Nyas has provided more than 35,000 artificial limbs and more than 8,000 polio and corrective surgeries have been conducted free of cost. His transformative efforts and act as a serve as a beacon of inspiration, especially for the youth and the differently abled community. I would also like to introduce Professor Sandeep Sangal sir. We are feeling honored to have you with us. He is a very senior professor in the Department of Material Science and Engineering. Along with his intensive research work and teaching, Sir is also a social activist through the Ranjit Singh Rosie Shiksha Kendra, which is an institute project established to reach out to the surrounding villages and contribute to the employability of the youth. Recently, one of his initiatives, Online Rural Education Initiative, has been adopted by the Department of Education in Uttar Pradesh. Sir, I would like to invite you on stage to have some words with the audience. So, thank you. And let me tell you, I came into this institute as a BTech student in 1977. And it was active at that time. So it goes back, you can calculate how many years back now. So, I think it is doing great things. And I was introduced as that we are doing some work in rural India. In fact, we are doing a lot of things apart from my other teaching and research related things. We have this Ranjit Singh Rosie Shiksha Kendra, which does many other things that this Samiti is also doing. So, in fact, I would say I'll take this time we can actually come together on many of these aspects. We work with farmers, we work with into rural India, trying to create livelihood. We are actively working into education of rural kids because we know the kind of schools that we have. And so in fact, we started with 1 or 2 schools and then finally UP government noticed us and says, why don't you take more schools? So we have recently signed an agreement with UP government. They are immediately giving us 10 government schools and they want us to take in the next 1 year
100 more schools. So this is the endeavor of this Ranjit Singh Shiksha Kendra. Now coming to the topic of today. So it is my pleasure to introduce Padam Shri Bimal Kumar Jain, who is here, who has been working on the cause of organ donation and support for the differently abled people. And I'll say that said something like 35,000 plus people have been helped with that. Oh, that's absolutely great, because as a result, just look at the number of lives that have been changed as a result of this. So if each one of us could do small little things, even small little things, that would make our society so much better than what we are. So I'm really very happy to welcome him. Thank you. Ma'am, Mrs. Rojan, we would like also to invite you on the stage and accept a small memento from our side. Ma'am, please. Hers. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for honoring the guest. Now, I would like to invite Mr. Bimal Kumar Jain, sir, for an enriching talk on the stage. आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है और इस अवसर पर IIT ने बुलाया है ये, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा अवसर है जहाँ से देश को दिशा मिलती है। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में अपनी सम्मान निवेदित करता हुआ अपनी बात को शुरू करता हूँ। आप सब लोग भारत के अंदर एक बात कि इंजीनियर्स को, आर्किटेक्ट को अपने यहाँ जो विश्वकर्मा भगवान है वो मानते हैं। तो आप सभी जो है विश्वकर्मा के वंशज हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आप लोग IIT में देश के नवनिर्माण की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, बड़े रूप से। सबसे पहले तो हम भारतीय हैं, इस देश के नागरिक हैं और आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आज़ादी के इस 75 वर्ष के बावजूद हम सब लोग किस स्थिति में हैं इसका अंदाज़ लगा सकते हैं। आज भी इस देश के अंदर गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, कुपोषण, ये सब चीज़ों की शिकार हमारी एक बड़ी संख्या है। उनकी कॉस्ट पर आप सब लोगों को, एक लिमिटेड लोगों को IIT में या UPSC में या बाकी कॉलेजेस में पढ़ने की सुविधा मिली है, तो समाज का बहुत बड़ा कर्ज हमारे ऊपर है और उस कर्ज को पूरा करने का काम हम सबको करना है। मैं स्वामी विवेकानंद जी के एक वाक्य से अपनी बात को शुरू करता हूँ। They only live
who live for others. Others are mere dead or alive. जीने का अधिकार उन्हें है जो पीड़ित मानवता के लिए जीते हैं, और बाकी जितने भी लोग हैं जो देश के विकास के लिए नहीं जी पाते हैं, अपने लिए जीने की कोशिश करते हैं, उनका जीना या मरना कोई मायने नहीं रखता। आप सभी जितने लोग हैं, ये IIT कानपुर देश का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, जहाँ से आने वाली पीढ़ी, आने वाला देश का विकास आप लोगों के हाथों में है। आपको जिस भी कारण एक अवसर मिला है, आपने पढ़ाई अच्छी की होगी, आपने अच्छा जो है माहौल परिवार के अंदर या परिवार के माता पिता ने आप सबों के लिए एक बड़ा योगदान देने का विचार किया होगा, अपने पेट को काट कर आपको यहाँ तक भेजा है। आप उन माता पिता के शुक्रगुजार हैं कि जिनके कारण आपको यहाँ तक आने की सुविधा मिली। देश, चूँकि आने वाला 25 वर्ष देश का बड़ा इम्पोर्टेंट है, जब हम शताब्दी वर्ष में पहुँचेंगे, तब तक क्या हम भारत को हर दृष्टि से संपन्न, सुखी, संस्कारित, निरोगी भारत बना सकते हैं क्या? ये आपके सामने एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अभी आप यहाँ से निकलेंगे, साल 2 साल में जब भी निकलेंगे, जिस भी नौकरी में जाएंगे, वो सब नौकरियाँ आपकी, खासकर वो देश के नव निर्माण की रचनात्मक कामों की पीढ़ी होने वाली है। इसलिए आप लोग के जिम्मे भारत की बड़ी बागडोर आने वाले दिनों के अंदर रहेगी, जिसके लिए हम आज इस अवसर पर शुभकामना देते हैं। मैं आपको, क्योंकि आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम लोग सामान्य पढ़े लिखे लोग हैं, परंतु कुछ ऐसी बातें ज़रूर है जिसके कारण कुछ करने का मिजाज हो जाता है। कोई सोचता होगा कि साहब, अभी जैसे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ कि साहब 35,000 लोगों को लिम्स दिए गए, 8,000 लोगों को की सर्जरी हुई, उसके बावजूद भी 24-25 साल की ये यात्रा है, उस यात्रा के बावजूद भी लगता है कि अभी तक तो हम चले भी नहीं हैं। ये एहसास रोज होता है, क्योंकि समस्या इतनी बड़ी है, उसके समाधान में हम बहुत छोटा सा अंशदान कर पाते हैं। आने वाला दिन कैसा होगा, ये एक चिंता का विषय है। हम लोग अनस्किल्ड लोग हैं, जिन्होंने कुछ योगदान करने की कोशिश की होगी, परंतु आप लोग तो स्किल्ड भी हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर व्यक्ति के जीवन में 3 बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है: रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ से निकलने के बाद उपलब्ध रहने वाली है। इसलिए आपके ऊपर समाज का बहुत बड़ा ऋण है, जिसको चुकाने की जिम्मेदारी देश के नवनिर्माण, जिस भी क्षेत्र में आप जाएं, उस क्षेत्र से एक परिवर्तन की शुरुआत हो, उस क्षेत्र के अंदर एक संपन्नता की शुरुआत हो, और आने वाले 100 वर्षों के अंदर भारत एक विश्व का सबसे बड़ा वैभवशाली और संपन्न राष्ट्र हो सके और विश्व को दिशा दे सके। भारत एक छोटा सा राष्ट्र नहीं है। हम सब लोग, जिस भी विधा के लोग होंगे, सबों को पता है कि हम को देश किधर ले जाना है। सिर्फ अपने तक जिएंगे कि हम कुछ समाज के लिए भी अर्पित करेंगे। हमने भी जब शुरुआत की थी, तो उस समय बिहार के अंदर स्थिति ये थी कि किसी को यदि पैर कट गया या पोलियो ग्रस्त है या बाकी, तो उसको अपने इलाज के लिए चाहे तो दिल्ली या जयपुर जाने की ज़रूरत पड़ती थी। एक छोटा सा भी यदि बैसाखी की भी ज़रूरत है, तो उसके लिए दूसरे जिलों, दूसरे प्रदेश के और जाने की ज़रूरत होती थी उनको।
यदि उसके पास पैसा नहीं है तो वह घर के अंदर आइडियल होकर पड़ा रह जाता था। आप कल्पना कीजिए कि आपके घर में किसी भाई का पैर, किसी बहन का पैर कट जाए और कटने के बाद उसकी मानसिक दशा का यदि आप अंदाज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ज़िंदगी कितनी भयावह हो गई है अचानक। उसी तरह से आपके परिवार में कोई वैसा व्यक्ति खड़ा हो जाता है जो मानसिक रूप से मेंटली रिटार्टेड है या ऑटिज्म का शिकार है या सेरेब्रल पाल्सी का शिकार है। वैसे बच्चे जिस घर के अंदर हो जाते हैं, भले वो संपन्न भी क्यों न हो, उनके परिवार की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। उस समय आप अपने सब सुख सुविधाओं को छोड़कर उसके लिए पूरा अटेंशन हो जाता है, भले आप कितने पढ़े लिखे हों। इन लोगों की चिंता कौन करेगा यदि वह निर्धन है? और सरकार की तो एक सीमा होती है, परंतु जो सामाजिक कार्यकर्ता है या जो पढ़ा लिखा वर्ग है, उसकी क्या जिम्मेदारी होती है, ये चिंता सोचने का विषय आज आपके लिए है। आज भी बिहार के अंदर छोटा सा काम है, परंतु चूंकि बड़ी रेखा बगल में नहीं खींची हुई है, इसलिए छोटी सी रेखा भी बड़ी दिखती है। हमको हर व्यक्ति हर घर तक जो है पहुंचने का प्रयास, हर घर को सुखी और संपन्न करने का प्रयास, निरोगी रखने का प्रयास करने की आवश्यकता है। आज आपको आपकी तबीयत खराब होती है तो माँ बाप कितने चिंतित होते होंगे। उनको खबर यदि घर पे लगती होगी तो वो 50 बार फ़ोन आपको करते होंगे कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है। भले आप IIT में हो या फिर और कहीं हो, परंतु उनकी चिंता कितनी होती है, चूँकि आप अपने हैं। परंतु वैसे अपने जब पराये भी होने लग जाए तो समझिए कि ज़िंदगी की शुरुआत अच्छी हो गई है। जीने का तरीका क्या हो, जो मूलभूत आवश्यकताएं जो लोग कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान यहाँ से जाने के बाद आपको मिल जाने वाला है, उसके बाद आप क्या करेंगे? चाहे तो एक लेविश ज़िंदगी जिएंगे या अपनी जिम्मेदारी के साथ समाज को कुछ अर्पित करेंगे, ये एक आपके सोचने का विचारणीय बिंदु है। स्वामी जी की घटना आपको पता होगी कि महाराजा खेतरी, जिन्होंने इनका नाम विवेकानंद रखा, उनके ये गेस्ट थे और वहाँ पर उन्होंने इनके लिए जितनी भी सुख सुविधाएं हो सकती हैं वो सब, अच्छा गद्दा, अच्छा कमरा, अच्छी व्यवस्था, अच्छे खाने पीने की सब कर रखी थी। परंतु जब रात के 1 बजे 2 बजे देखा कि स्वामी जी क्या कर रहे हैं, पता करने की कोशिश की तो वो गद्दे पर नहीं ज़मीन पर लेटे हुए और बुरी तरह से रो रहे थे। आप लोगों ने ये सब घटना पढ़ी भी होगी, जानकारी में भी होगा। तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि मुझसे कोई गलती हो गई क्या, मैंने ये जो है सुविधाएं दी, परंतु आप तो कोई तकलीफ़ हो गई हो तो बताएं। बोले नहीं, तकलीफ़ आपसे नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अधिकारी नहीं हूँ कि इस गद्दे के ऊपर सो सकूँ जब तक कि इस देश के लाखों लोग, करोड़ों लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जिनको एक टाइम का भोजन भी नहीं मिल पाता है। तो ये दर्द हम सब के मन में भी थोड़ा थोड़ा आने की ज़रूरत है। जब पराये के लिए अपना दर्द होने लग जाए तो समझिए कि ज़िंदगी की अच्छी शुरुआत हो गई। पटना के अंदर एक छोटा सा केंद्र है। हम लोग सोचते हैं क्या कि इनको पद्मश्री मिला होगा तो ज़रूर से जो है कुछ किया होगा इन्होंने, परंतु जब उनके लिए अपने बच्चे के जैसा दर्द महसूस होने लग जाए तो समझिए कि आप कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं। आपके बेटे को जब तकलीफ बुखार होता है तो आप जिस डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, वैसा इलाज आप जब दूसरों के लिए भी सोचने लग जाएं तो एक आनंद की स्थिति हो जाती है। ये ज़िंदगी का जो है एक फिलॉसफी है कि जिसको हम अपने यहाँ
अपने अलावा जो है दूसरों की भी चिंता करने वाला ये देश है। संपन्नता के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन, ये स्वामी जी की कि हम राष्ट्र के सबसे शक्तिशाली पुरुष होंगे, सबसे ज़्यादा सामर्थ्यवान होंगे, परंतु आध्यात्मिक गुण के साथ हम जिएंगे ताकि समाज को हम कुछ दे सकें, दूसरों की चिंता कर सकें। आज भारत किसी दिशा में, अनेकों दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश जरूर कर रहा है, परंतु आने वाले 25 वर्ष का संचालन देश का आप लोगों के हाथों से होने वाला है। इस दिशा में चिंता की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है। एक और क्षेत्र है नेत्रदान, अंगदान का। ऑर्गन डोनेशन को लेकर लिखा गया है, मृत्यु आपका जीवन भगवान ने दिया है, तो क्या मृत्यु के पश्चात इस जीवन को हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं क्या? एक बहुत सिंपल सी बात है कि आप सब लोग, शहर के, गांव के सब लोग होंगे, आपको ये घर के अंदर किसी की किडनी खराब हो जाती है तो वो परिवार उसके लिए किडनी लेने के लिए अपनी पूरी संपत्ति को बेचने को तैयार हो जाता है कि इसकी किडनी मिल जाए दूसरी, ताकि इसका जीवन अच्छा हो सके। चूंकि वो अपना है, इसलिए आपको लगता है क्या कि हम अपना ये सब संपत्ति को बेचकर भी इसके जीवन को बचा सकें। वैसे ही प्रतिवर्ष इस देश में 1 लाख लोग से ज़्यादा कॉर्निया के अंधेपन से ग्रसित होते हैं, 1 लाख से ज़्यादा, और ये बैकलॉग अभी तक करीबन 12 या 13 लाख है। और सालाना मृत्यु के पश्चात नेत्रदान की संख्या हजारों में है। हम उस बैकलॉग को भी पूरा नहीं कर पाते, जबकि मृत्यु के पश्चात ये शरीर को आप जलाते हैं या गाड़ते हैं, जो भी उसके सांसारिक गतिविधि है वो करते हैं आप, परंतु क्या उन नेत्रों का दान आप कर सकते हैं क्या? इसके लिए जागरूकता पैदा कर सकते हैं क्या? ये एक सोच का विषय है। अभी बिहार के अंदर ये मुहिम पिछले 4-5-6 सालों से शुरू हुई। अभी तक कुल मिलाकर 1300 से ज़्यादा लोगों नेत्रदान हुआ। नेत्रदान का मतलब कॉर्निया दान, आंखों के ऊपर की एक झिल्ली होती है, वो झिल्ली उसी का दान होता है, और वो किसी दूसरे में ट्रांसप्लांट होता है तो उसकी रोशनी आ जाती है। ऐसा दान मात्र 1300 जो है अभी तक हो पाया। 1300 लोगों को रोशनी मिली आंखों में, और वो अपना जीवन को सफल बना पाए। उनकी आंखों को जो है, आपके घर में किसी को कॉर्निया की जरूरत और उपलब्ध ना हो, तब आप क्या करेंगे? घर के अंदर बहुत बार जो बच्चे पैदा होते हैं वो अंधेपन के शिकार होते हैं। वैसे लोगों के लिए क्या आप कुछ कर सकते हैं क्या? हम तो कह रहे हैं कि मृत्यु के पश्चात आपको करना है, पहले नहीं। हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। उस एक्सीडेंट में, हॉस्पिटल में या कहीं भी मृत्यु हो जाती है, जब तक उसकी डेथ होती है, यदि आपने संकल्प लिया हुआ है कि हम अपने अंगों का दान करेंगे, तो उस अंग दान से प्रतिवर्ष कम से कम भी 1.5 लाख से ज़्यादा 3 लाख किडनी मिल सकती है, लीवर मिल सकता है, हार्ट मिल सकता है, स्किन मिल सकती है, जिसके माध्यम से वैसे लोगों की जिंदगी में उजाला हो सकता है जो इन चीज़ों के कारण पीड़ित हैं। बात बड़ी अजीब सी लगेगी, परंतु समाज को यदि हम कुछ दे सकते हैं, पूरी जिंदगी लेते ही लेते रहे हैं, समाज को कुछ देने की आदत यदि हम शुरू करें तो हम एक अच्छा भारत बना सकते हैं। हमारे बगल में श्रीलंका है। श्रीलंका में एक ऐसी परिपाटी चली है कि मृत्यु के पश्चात वह नेत्रदान स्वाभाविक रूप से करते हैं। उसका नतीजा ये है कि आज
श्रीलंका में कॉर्निया के कारण जो अंध पीड़ित लोग हैं वो नहीं हैं। बजाता अब जो कॉर्निया वहाँ इकट्ठा होता है वो दूसरे देशों को एज ए गेस्चर के रूप में भेंट कर देते हैं, ताकि जहाँ पर इसकी उपलब्धता या उपयोगी हो वहाँ पर इसका काम हो सके। आज भारत के अंदर कम से कम भी 13 लाख से ज़्यादा लोग इससे पीड़ित हैं, और यदि हम लोग प्रयास करें तो कुल मिलाकर 11 दिनों में 12 दिनों में हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। प्रतिवर्ष प्रतिदिन 60,000 लोगों की मृत्यु होती है और 80,000 लोग पैदा होते हैं। जिनकी मृत्यु होती है, यदि उनके कॉर्निया का दान हो जाए तो आप समझिए कि कितना खुशहाल भारत हो जाएगा। एक समस्या से कई समस्या को हम दूर कर पाएंगे। सिर्फ जागरूकता की कमी या हमारे योगदान की कमी के कारण ये परेशानी हो पाती है। अभी एक सज्जन है सूरत में, उनके पिताजी की 700 बार डायलिसिस हुई, 700 टाइम्स। उनके बेटे ने वो ऑर्गन डोनेशन कराने का एक अभियान शुरू किया, तो लोगों ने कहा कि अपने पिताजी का तो पहले जो है किडनी आप ठीक करा लो। पिताजी के किडनी के लिए जब वो पिताजी से रिक्वेस्ट किया कि आप किडनी अपनी बदलवा लें, तो उन्होंने कहा कि तो मेरी तो आयु हो चुकी है, किसी नौजवान को ये किडनी लगाओ ताकि उसका जीवन अच्छा हो सके। आज उस व्यक्ति के माध्यम से 1360 किडनी, लीवर, हार्ट, कुल मिलाकर ये सब अंग मिलाकर इतने लोगों का ट्रांसप्लांट हुआ है। अभी एक लड़की हमारे पटना में हमने बुलाया था उसको, वो जब 7 साल की थी उस समय उसको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, और आज वो जो MBA की विद्यार्थी। छोटा छोटा सा योगदान कितना बड़ा हो सकता है, ये एक बड़ा चैलेंज है। एक हम सब लोगों की निगाह में रहता है कि राजनीति सब चीज़ों का समाधान है, परंतु वास्तव में राजनीति की देश के 5 साल की सोचते हैं। हम और आप जो नागरिक हैं इस देश के, जिनके ऊपर समाज का कुछ कर्ज है, वो अगली पीढ़ी के लिए सोचते हैं, अगला समाज कैसा हो इसके लिए सोचते हैं। इसलिए वैसे फील्ड, वैसी दिशा समाज की जो अनछुई है, जिसको हम लोगों ने छुआ नहीं है अभी तक। जैसे दिव्यांगता का विषय आया, दिव्यांगता में भी शारीरिक दिव्यांगता और मानसिक दिव्यांगता, इन दोनों को दूर करने का बीड़ा उठाने की जरूरत है। करोड़ों लोग भारत के जो भी हमारी जनसंख्या उसका 10% किसी न किसी रूप की दिव्यांगता के शिकार है। वो चाहे वो अंधापन हो या शारीरिक दिव्यांगता हो या मानसिक दिव्यांगता हो, एक बड़ा चैलेंज पूरे समाज के आगे है। हम लोग वैसे ही ऑर्गन डोनेशन को लेकर हम लोग यदि जागरूक होते हैं तो समाज के अंदर एक बड़ा खुशनुमा माहौल बनता है। जब आपकी आंखों से किसी दूसरे को रोशनी मिलती है, एक चीज़ तो सत्य है कि आपके कितने ही अजीज हों, यदि उनकी मृत्यु होती है तो आप उस मृत्यु के बाद कितनों ही अपना और अजीज को न हो, घर में आप नहीं रख सकते। उसको जल्द से जल्द जो है, जिस गद्दे पर वो सोए होते हैं उसको भी आप नीचे उतार कर रख देते हैं कि ये अब किसी काम का नहीं है, निधन हो गया, ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि धनहीन हो गया, वो अब किसी काम के लायक नहीं है, इसलिए उसको जल्द से जल्द घर से बाहर करो। इवन वो सोने और गहने जो उसके शरीर में होते हैं वो भी आप निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको उनके शरीर से ज़्यादा मूल्यवान वो गहना दिखता है। क्या उनके शरीर का यदि आप दान करेंगे तो जो भगवान ने अंग दिए हैं, जो और वैल्यूएबल है, उससे किसी का जीवन बच सकता है। ये एक बड़ी बात है, ये एक विचार का बिंदु है आपके लिए। वैसे ही हमारे एक परिचित मित्र अमेरिका के हर साल हमारे साथ इसी दिसंबर जनवरी में पटना आते हैं। उनका इकलौता बेटा
17 साल का बेटा कार एक्सीडेंट में अमेरिका में मारा गया। मरने के साथ ही हॉस्पिटल ने कहा कि इसकी बॉडी को आप डोनेट कर दीजिए। उस परिवार ने अंत में सोचकर उसकी बॉडी को डोनेट किया, और डोनेट का लाभ ये हुआ कि 2 को आंखें मिली, 2 को किडनी मिली, 1 को लंग्स मिला, 1 को हार्ट मिला, और 200 वैसे बच्चे जो छोटी छोटी हड्डी के अभाव में, रीढ़ की हड्डी में कमी के कारण वो खड़े नहीं हो सकते थे, वैसे 200 से ज़्यादा बच्चे खड़े हो पाए। तब उनको लगा कि अरे हमारा जो है बेटा 17 साल की उम्र में जाते जाते 250-300 लोगों का भला कर गया, तो हम तो उसके माँ बाप हैं, क्या हम कर सकते हैं इन बच्चों के लिए। तब उन्होंने कभी अमेरिका के अंदर किसी चर्च के बाहर में कभी खाना खिलाना, कभी कपड़ा बांटना, ये सब चलता रहा। मन में संतुष्टि नहीं थी। अंत में हम लोगों से भेंट हुई तो हमारे साथ पिछले 24 साल से साथ है, और हर साल किसी न किसी रूप में हमारा उनका साथ रहता है। तो एक छोटी सी घटना उस परिवार की जिंदगी को बदल देती है, सोच में अंतर ला देती है। हम तो मानव हैं और भारत के रहने वाले हैं, क्यों नहीं हम जो है ऐसा कुछ करें जिससे कि हमारे देश का, हमारे लोगों का एक भला हो। कोरोना काल के अंदर आपको पता है कि पहली बार वैक्सीनेशन बना इंडिया में, और उस तकलीफ की घड़ी में भी इस देश ने 50 कंट्रीज को वैक्सीनेशन भेजा। ये आपकी सोच का परिचायक है कि इस देश की सोच क्या है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम सभी सुखी हों चाहे कहीं के भी हों। ये एक बड़ा सोच का दृष्टिकोण हमारे देश का रहा है। उस तकलीफ की घड़ी में 50 देशों को भेजा जाना एक बड़ी बात थी। आज भी वे सब देश आपके विचारों के, आपके निकट है, आपके कायल है। आने वाला भारत भी और अच्छा हो, सबका भला हो, पूरे विश्व का भला हो, ये एक चुनौती है जिसको पूरा करने का काम आप सबके साथ करने की ज़रूरत है। मैं कुछ चीज़ें आपको बताने के लिए ज़रूर चाहता हूँ कि भारत के विकास का अर्थ क्या है। भारतीयता का विकास, भारतीय मनीषा और मानवता का उन्मेष, भारतीय मूल्यों एवं परंपराओं का उत्कर्ष, भारतीय संवेदना का विस्तार, भारत के जनगण मन की शैली में पुरातन और अधुनातन का समन्वय, भारतीय ऊर्जा की अभिव्यक्ति, व्यक्ति की गरिमा और देश की सुरक्षा। भारत की परिभाषा आज के संदर्भ में तो यही हो सकती है। हमारा हर दृष्टिकोण से, हर क्षेत्र में, चाहे वो सांस्कृतिक हो या शैक्षणिक हो, उस पर भारत की जो गौरवशाली परंपरा है उसके बोध के साथ हमारा योगदान होना जरूरी है। हम सब के जीवन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता, भारतीय मूल्यों के आधार पर राष्ट्र जीवन। आज बहुत बार 75 साल के बावजूद भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसी बातें हमारे देश में हमारे ही पढ़े लिखे लोगों के बीच ये बात आती है, और उसका भी एक बड़ा ग्रुप देश का समर्थन करता है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये एक विचार का बिंदु जरूर है। हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, ये एक विचार मन के अंदर आने की जरूरत है। जीवन में भारत प्रथम हो, विश्व बंधुत्व की भावना, सत्यम शिवम सुंदरम का दृष्टि, अहिंसा परमो धर्म, सादा जीवन और उच्च विचार, राष्ट्रहित सर्वोपरि, पाश्चात्यकरण के बिना आधुनिकीकरण भारत का। हम हर चीज़ों में विदेशी दृष्टि के फॉलोअर होते चले जा रहे हैं रोज। ये एक, जबकि हमारी अपनी भी गौरवशाली और समृद्ध परंपरा रही है, उसके प्रति
अगाध श्रद्धा का पैदा होना जरूरी है। मनुष्यता के साथ जीने की कला, वसुधैव कुटुंबकम की भावना विकसित करना, अत्याधुनिक ज्ञान का अर्जन कर पूरे विश्व को आध्यात्मिकता के साथ जीवन जीने की दिशा देना, ये हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि मैंने शुरू में भी कहा है कि रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी समस्या से अब आप ग्रसित नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी है भारत सरकार का, जहाँ यूपीएससी के विद्यार्थियों का प्रशिक्षण दिया जाता है, वहाँ जाने का मौका मिला था। वे सब करीबन 190 IAS उनके बीच बात करने का सौभाग्य मिला था। उनसे बातचीत करने के क्रम में यही बात सामने आई कि आज वो वहाँ से निकलेंगे और आने वाले 25 साल तो देश के लिए देंगे ही देंगे। कहीं कलेक्टर होंगे, कहीं पर और भी एडमिनिस्ट्रेटिव पदाधिकारी होंगे, और उनके जीवन में कमी किसी चीज़ की नहीं होगी। उनके पास तो ताकत भी होगी, शासन भी उनका होगा, पैसे भी उनके पास होंगे, परंतु एक संवेदना के साथ जो निर्धनतम व्यक्ति है उस क्षेत्र का, उसके विकास में एक बड़ा योगदान उनका होगा। इस संकल्प के साथ वे सब लोग से अनुरोध किया मैंने कि आप जिस भी क्षेत्र में जाएं, अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल भारत को संपन्न राष्ट्र बनाने में करें। इतनी बात मैंने उस समय उनसे कही थी। आज अनेकों ढंग की बातों से पूरा देश ग्रसित है। आप अच्छा करें तो अच्छा नहीं है, बुरा करें तो वो अच्छा नहीं है। ये स्थिति देश के लिए कोई एक सम्यक सोच, एक प्रॉपर सोच का अभाव, जिसके कारण हम कभी जाति के आधार पर जीते हैं, कभी और किसी आधार पर जीने की कोशिश करते हैं। परंतु देश बचेगा तो हम बचेंगे, देश यदि नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। इस बात का बोध हमें करने की ज़रूरत है। आप सबको पता है कि आने वाला दिन भारत का बहुत क्रूशियल है। संविधान के 73 या 74 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हम बार बार संविधान की दुहाई देकर जो चाहते हैं उसकी परिभाषा में परिवर्तन करने लग जाते हैं। यदि आप समर्थ होंगे तो आप देश को दिशा दे सकेंगे, संविधान को पूरी तरह से लागू कर सकेंगे। जो भी संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान माना जाता है, जो मानव के हित को सोचने वाला है, परंतु उसकी परिभाषा को रोज कुत्सित ढंग से परिभाषित करने की जो आदत बनी हुई है, उससे बचकर हमें नवनिर्माण की दिशा में अपने योगदान की ज़रूरत है। ये एक देश का जो है बहुत बड़ा चैलेंज आज आपकी पीढ़ी के साथ होने वाला है। हम लोग शताब्दी वर्ष को देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे ये मैं नहीं कह सकता, परंतु देश का भविष्य उज्जवल हो ये आपके हाथों में है। आज कानपुर में ठंड बहुत है। आज लगता है कि बहुत सारे विद्यार्थी और आना चाहिए था, किसी न किसी ठंड के कारण पूरी उपस्थिति आज नहीं हो पाई है। जबकि यहाँ जैसी जानकारी मिली कि 13,000 से ज़्यादा विद्यार्थी हैं, परंतु स्वामी जी ने कहा था कि मुझे 100 लोग ऐसे देश के चाहिए जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश को बदलने के लिए तैयार हो। तो 100 में आज 50 की संख्या तो यहाँ जरूर उपस्थित है। हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आज देश को दिशा देने का काम आपके हाथों में है, और भारत की कल्पना कैसा देश हो उसकी एक छोटी सी व्याख्या मैं रखकर अपनी बात को करीबन समाप्त करने की स्थिति में आता हूँ।
माई आइडिया ऑफ भारत सत्यमेव जयते। माई आइडिया ऑफ भारत वसुधैव कुटुंबकम। माई आइडिया ऑफ भारत अहिंसा परमो धर्म। माई आइडिया ऑफ भारत सर्व पंथ संभाव। माई आइडिया ऑफ भारत एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। एक सच है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। ये टॉलरेंस का इतना बड़ा उदाहरण है कि हम सबको आत्मसात करने की स्थिति में हैं, सबके विचारों को सुनने की स्थिति में हैं, परंतु सत्य का मार्ग अंततः एक ही होगा। माई आइडिया ऑफ भारत सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। माई आइडिया ऑफ भारत जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि चिरगरीयसी। माई आइडिया ऑफ भारत पौधे एवं मूक जीवों में भी परमात्मा का वास है। आज हिंसक विश्व के अंदर शांति की तलाश में हम सब लोग लगे हुए हैं और कहीं कोई समाधान नहीं मिल रहा है। उस समाधान का आधार भारत की दृष्टि है, भारत का सोच है, जो पूरे विश्व को फिर से नए विश्व को परिभाषित करने की ताकत रखता है। इस बात को हम लोग ध्यान रखें। माई आइडिया ऑफ भारत यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। स्वामी जी ने भी यही बात कही कि बाकी देशों के अंदर नारी को नारी के रूप में देखा जाता है, परंतु अपने देश के अंदर नारी को जो है मातृशक्ति के रूप में देखा जाता है। माई आइडिया ऑफ भारत दरिद्र नारायण की सेवा। हर व्यक्ति, हर परिवार, हर बच्चा इस देश के लिए जिए, उसकी संपन्नता को पूरा करने में हमारा योगदान हो, ये एक बड़ी बात है। एक बात और आती है, सबके मन में आती है कि अभी तो हम निकले हैं, नौकरी हुई है, हमारे बाल है, बच्चे हैं, शादी होगी, नया जीवन शुरू होगा। जब इन सब चीज़ों से मुक्ति होगी तब हम कुछ समाज के लिए करेंगे। ये एक स्वाभाविक रूप से सभी के घर के अंदर ये बात आती है, परंतु जीवन ऐसा नहीं है। जिस उम्र तक आप पहुंचेंगे तब तक क्या हो चुका होगा पता नहीं। संस्कृत में एक श्लोक है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हशिष्यति पंकजश्री इत्थम विचितयन्ति कोश गते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गज मुज्जहार। शाम का समय है, तालाब में कमल खिले हुए हैं। एक भौरा एक कमल पर बैठकर सोच रहा है, इतने में सूर्यास्त होती है, वह कमल का फूल बंद हो जाता है। अंदर में सोच रहा है कि कल सवेरा होगा, फिर से एक नई जिंदगी शुरू होगी, फिर से एक नया जो है अलग अलग पौधों पर जाकर हम उसका रस लेंगे। ये सोचते सोचते उसके अंदर वो रात होती है। इतने में हाथियों का एक झुंड उधर से गुजरता है और उस पौधों को जो है वो निचोड़ता हुआ खा जाता है और आगे बढ़ जाता है। हमारी कल्पना सिर्फ कल्पना न रह जाए, हम ख्वाब में नहीं जिए, वास्तविकता में हम देश के लिए योगदान कर सकें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपके शब्द वाकई में काफ़ी प्रेरणाजनक थे और आई एम श्योर हम सबको ही काफ़ी इंस्पायर किया है। तो आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कोई भी प्रश्न पूछना चाहे तो वो सर से पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा करके। माइक इस अभियान को चलाने के लिए सब फंड कैसे करते हैं? डोनेशन के थ्रू देते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। यही प्रश्न जो है हमसे मसूरी में जो भी ट्रेनिंग्स थे उन्होंने पूछा था, यही सेम प्रश्न कि आप फंड कहाँ से लाते हैं और कैसे करते हैं।
जिस समय शुरुआत की थी उस समय कोई फंड नहीं था। आपको पता है कि इस यूपी के अंदर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बनाने वाले मदन मोहन मालवीय जी, उनके पास पैसा नहीं था, परंतु मन के अंदर एक तड़प थी जिसके कारण उन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी को खड़ा किया। मन में यदि ललक होगी कि हमको ये करना है तो रास्ते निकलते जाते हैं और काम पूरा होता है। आज जो भी लोग जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले एक कोयम्बटूर के एक व्यक्ति को पद्मश्री की उपाधि मिली। वो माथे पर फल बेचता है, परंतु उसको क्या ललक थी, उसने अपने उस पैसे से 12 विद्यालय खोले उसने, जहाँ पर कि बच्चे पढ़ते हैं। अब 12 विद्यालय वो एक रोज 100, 150, 200 रुपया बेचने वाला व्यक्ति कहाँ से लाया होगा, परंतु मन के अंदर जज्बा था, इसलिए वो पूरा कर पाया। इसलिए जज्बे को सलाम है। आज इस देश के अंदर, गांव के अंदर भी आप देखते होंगे, कोरोना काल को देखिए ना, कोरोना काल के अंदर एक और जहां पूरे देश में एनार्की अराजकता फैली थी, लोग 1-1 हज़ार किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर की ओर आ रहे थे। उस समय गांव जिस रास्ते से गुजरते थे वो पैदल गुजर रहे हैं, साइकिल से गुजर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी घोड़ा सब बंद था उस समय। गांव के लोगों ने ही जो है कहीं पर पानी तो कहीं नाश्ता तो कहीं चप्पल तो कहीं कुछ, ये व्यवस्था की थी। उनके पास कोई ऐसा तो नहीं था, इसलिए कोई आदमी गरीब नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। करने की शुरुआत करें। जब मैंने भी शुरुआत की थी तो मात्र 35,000 रुपये हम इकट्ठा कर पाए थे। उसके पहले चूँकि हम जेपी आंदोलन के एक्टिविस्ट रहे, सब पानी में रहे, जेपी आंदोलन के एक्टिविस्ट रहे, तो मन में एक ललक थी कि समाज के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि कुछ न कुछ हम कंट्रीब्यूट कर पाएँ समाज को। मन में ये भी था कि जब सरकार नहीं कर सकती है तो एक इंडिविजुअल क्या कर पाएगा। संयोगवश उस समय एक ऐसा किसी व्यक्ति ने ऑफर किया कि हम यहाँ पर दिव्यांग लोगों का कैंप लगाना चाहते हैं, क्या आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्या। पहली बार बिहार में कैंप लगा था। उस एक कैंप में 2460 लोगों को आर्टिफिशियल सपोर्ट देकर उनको अपने पैरों पर खड़ा किया गया। पहली बार लगा कि जो है ये एक ऐसा फील्ड है जिस फील्ड में कुछ किया जा सकता है। तब से वो सोचते सोचते जो है एक छोटा सा गैरेज से शुरू किया। आज 4 मंजिला अस्पताल है जहाँ के माध्यम से हम लोगों की सेवा करने का प्रयास करते हैं, परंतु मन को संतुष्टि आज भी नहीं है। हर छोटा काम बाद में बड़ा होता है, एक साथ बड़ा कभी नहीं होता है। और आप शुरू कीजिए, उसी दिन से धीरे धीरे आपको आप सपना देखना शुरू करेंगे और वो सपना सच होते हुए भी देखना शुरू करेंगे। अभी कुछ दिन पहले कुष्ठ रोग एक ऐसा रोग है जिसके कारण आपके यदि बगल में आकर कोई कुष्ठ रोगी बैठ जाए तो आप जगह छोड़ देंगे, एक स्वाभाविक सी बात है। आज कुष्ठ रोग का कानून 125-150 साल पुराना है। उस समय आपको जानकारी है या नहीं, कुष्ठ रोगी आम गांवों के अंदर नहीं रह सकते थे। उनके लिए अलग बस्तियां होती थी, अलग गांव, अलग कुआं, अलग उनको खाने के लिए जो है दिया जाना, और वो भिक्षाटन करके अपनी जिंदगी यापन करते थे। 150 सालों में उनकी चिंता करने वाला कोई नहीं था। उनको उनका कुष्ठ रोग के कारण हाथ पैर धीरे धीरे गलने लग जाते थे। दवा ऐसी डेवलप हुई कि जिसके कारण उनके घाव में रोक लगने लग गई और अब वो संक्रामक रोग नहीं माना जाता है। परंतु सामाजिक
स्थिति उनकी इतनी दयनीय है कि वो अपने बच्चों का शादी विवाह नहीं कर सकते। इवन जिन बच्चे स्वस्थ हैं, बच्चों को कोई कुष्ठ रोग नहीं है, परंतु बाकी लोग नहीं जान जाएं कि ये कुष्ठ रोगी का बच्चा है, इसके कारण उनकी ज़िंदगी कितनी तकलीफदेह होती होगी पता नहीं। 116 कानून ऐसे हैं देश के अंदर, केंद्रीय और राज्य स्तर के कानून, जिसके माध्यम से उनके जीवन में नरक की स्थिति बनी रही है। कुष्ठ रोग के आधार पर आप तलाक ले सकते, डाइवोर्स कर सकते हैं, परंतु अभी सरकार ने जब से घोषणा की कि ये संक्रामक नहीं है, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस बात को कहा, तब जाकर चेंजेज आना शुरू हुआ है। अब सरकारी नौकरियों में भी उनको एक दर्जा देने की स्थिति हो रही है, परंतु उनकी चिंता कौन करेगा। आज जैसे दिव्यांग की बात की हमने, अंगदान की बात की, या फिर ऐसे कुष्ठ रोगी मोहल्लों की बात की, इन सब के लिए चिंता कौन करेगा। एक राजनीतिक इसकी चिंता नहीं कर पाता है, हम आप जैसे लोग ही इनकी चिंता कर पाते हैं। यदि मन के अंदर दर्द और संवेदना हो तब। बाबा आमटे का नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने कुष्ठ रोग के क्षेत्र में एक कीर्तिमान कह सकते हैं कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने वहाँ के लिए लगा दी। उनके बेटे आजकल, वो तो नहीं रहे, उनके बेटे अब इन कामों को देखते हैं। दूर से बहुत अच्छा लगता है कि साहब बाबा आमटे ने ऐसा काम किया। हम क्या कर सकते हैं, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। आज IIT के विद्यार्थी खासकर बहुत सारे क्षेत्रों में परिवर्तन का काम करते रहे हैं। मैं जानता हूँ रांची के पास नहीं, मेसरा नहीं, जहाँ ये नेतरहाट रहा उसके नीचे की बस्ती रही है, विशुनपुर, ठीक कहा आपने। उस पूरे इलाके को इंजीनियर्स ने यहाँ से पढ़कर निकले और उसके बाद 10 साल का समय, 5 साल का समय वहाँ पर दिया, और उसके कारण आज वहाँ परिवर्तन की स्थिति बनी है। इस ढंग का देश के अंदर बहुत सारा जो है अलग अलग ढंग से आप ही के माध्यम से दिशा परिवर्तन का काम चल रहा है। आपका आने वाला भविष्य क्या योगदान होगा समाज के लिए, एक सोचने और चिंता की बात है। जी, हमारी फंडिंग देश का जो लोग पसंद करते हैं वो लोग करते हैं, साथ में डोनेशन से सब साथ में। एक चीज है कि हम हैं कौन। भाई जो पसंद, भगवान ने आपको माध्यम बनाया है इन कामों के लिए। आप शुरुआत तो करें। आज शुरुआत छोटी सा पौधा लगाएंगे, धीरे धीरे आने वाले दिनों में वो वटवृक्ष का रूप लेगा। पौधा लगाने की कोशिश कीजिए, चेंजेज आना शुरू हो जाएगा। पैसे भी समाज के ही लोगों से मिलेगा। आज तक मुझे कोई सरकारी फंडिंग मैंने नहीं ली, मिल नहीं पाई है। जो व्यवस्थाएं सरकारी होती है उस पर हम लोग शूट नहीं करते, परंतु मेरा कोई काम नहीं रुकता है आज की तारीख में। ये काम का वरदान कहेंगे, काम का यश कहेंगे, जिसके कारण जिससे भी जो पैसा मांगते हैं हमें मिलता है। तो ये एक बड़ी बात हो जाती है। इसलिए फंडिंग का जहाँ तक सवाल है, फंडिंग ऊपर वाला चिंता करेगा, शुरुआत तो करके देखिए। जी हाँ बेटा, आप पूछ रहे थे। इसका कोई लीगल प्रोसीजर होता होगा तो वो कैसे होता है अगर मैं करना चाहती हूँ तो? क्योंकि फैमिली तो इतना अवेयर नहीं होती मेरे मन की बात, तो मैं एकदम सही है। अब तो चूंकि आप लोग बहुत कॉम्पिटेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, जो उसका सिस्टम है। आजकल NGO के माध्यम से बहुत सारे काम होते हैं। बी स्टार्ट। आप सोचिए कि आपको किस फील्ड पे काम करना है, पर्यावरण पे करना है, जल पे करना है, या फिर और जिस भी फील्ड में आपकी रुचि हो, उस रुचि को आधार बनाकर शुरुआत करें। आजकल तो स्टार्टअप्स की बात आप बहुत देखते होंगे। स्टार्टअप्स आज देश के अंदर हज़ारों हजार वैसे पढ़े लिखे युवा, जिसने IIT किया है,
यूपीएससी पूरा किया है, एमबीए किया है, सीए किया है, इन लोगों ने छोड़कर, बड़ी बड़ी नौकरियों को छोड़कर और स्टार्टअप्स के माध्यम से समाज को देने का बड़ा काम शुरू कर रखे हैं। आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा देश को। और एक से एक ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ जिसके माध्यम से वो परिवर्तन का काम कर रहे हैं। शुरुआत करें, आपके लिवलीहुड के लिए जो ज़रूरी है उसका ज़रूर ध्यान रखें। वन वे ट्रैफिक ना हो जाए, नहीं तो आप असफल होंगे तो वो हर काम को नुकसान देने वाला है। आप अपनी ज़िंदगी में सफल भी हों और उसके साथ साथ इन कामों को ज़िंदगी में प्राथमिकता देकर करें, ये इम्पोर्टेंट है जी। और कोई? हाँ बताओ। जैसे कि कभी भी हम कुछ भी बड़ा करते हैं तो स्टार्टिंग होती है, कहीं से इंस्पिरेशन लेते हैं, तो ऐसे ही आपकी लाइफ में कुछ ऐसे स्टार्ट किए मैं एक सामान्य परिवार से व्यक्ति हूँ। परिवार का कोई पढ़ा लिखा भी तो अपने ही ट्यूशन करके ज़िंदगी चली है, परंतु जेपी आंदोलन के समय लगातार आंदोलन में बात तो बड़ी बड़ी करते थे कि भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए, लोगों के जीवन में बदलाव आना चाहिए, शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए, ये सब बातें बड़ी बड़ी थी। करेगा कौन? कहाँ से शुरुआत होगी? तो उन्होंने एक दिया था कि सत्ता नहीं, समाज बदलना है। ये जयप्रकाश जी ने नारा दिया था, और सत्ता नहीं समाज बदलना है। तो इसका एक उस समय के काफ़ी सारे युवा राजनीति में नहीं गए, समाज के अन्य क्षेत्रों में गए, जिसमें कि रचनात्मक परिवर्तन, रचनात्मक योगदान देने का प्रयास किया गया। हम नारा लगाना बहुत अच्छा है, देश को आज़ादी के लिए हल्ला करना बहुत अच्छा है, परंतु आज़ादी के बाद देश को बनाना ये उससे भी बड़ा टास्क है, जिस टास्क को पूरा करना हम सब की जिम्मेदारी। ये एक, इसलिए अपने साथ साथ ज़िंदगी में आप बाकी चीज़ों की चिंता करते हैं, अपने परिवार की, अपने माँ बाप की, अपने बच्चों की करेंगे, उसके साथ साथ क्या योगदान समाज के लिए होगा ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और ये आपके लाइफ की प्रायोरिटी में होना ही चाहिए। और छोटी सी शुरुआत, बारिश की छोटी छोटी बूंदें धीरे धीरे नदी का बहाव बन जाती है, एक नदी का रूप ले लेती है। तो वही हाल हमारी ज़िंदगी का भी हो कि छोटा छोटा योगदान समाज के लिए हम करें। आप जहाँ भी रहते हैं, मान लीजिए आपके क्षेत्र में बच्चे होंगे, गरीब बच्चे होंगे, उनको पढ़ाने का काम, उनको ट्रेनिंग देने का काम, उनको स्किल्ड बनाने का काम, ये छोटा सा काम आपको दिखता है कि बहुत छोटा सा है, परंतु ये बहुत बड़ा काम है। इस दिशा में हम सब लोग जो है सोचें, विचारें और स्वामी जी के सपनों का भारत बनाने का प्रयास करें। मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि मैं ट्यूशन्स देती थी बच्चों को, हालांकि वो फैमिली अच्छी होती थी। जरा माइक दीजिए ना उनको, ज़्यादा अच्छा होगा। मैं बच्चों को ट्यूशन्स देती थी जब मैं ग्रेजुएशन में थी। फैमिलीज अच्छी हुआ करती थी तो चार्ज करती थी मैं। लेकिन मेरे पड़ोस में एक आंटी काम करने आती थी, उनके बच्चे भी काम करने आते थे साथ में। मैंने उनसे पूछा कि तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? तो मैं तुम्हें कॉपी लेकर देती हूँ और पेन पेंसिल और कटर जो होता है उसको लाकर देती हूँ, तुम पढ़ना शुरू करो, मैं तुम्हें ABCD दूंगी और तुम रोज़ मुझे काम दिखाओगे। तो वो बच्ची रो गई और मुझसे बोली कि नहीं मैं मुझे पढ़ना नहीं है, मम्मी डांटेंगी। मेरे को पढ़ा, उनकी 4 बहनें थी और सब काम करती थी, और एक लड़का था, उसको स्कूल में डाला था। बाकी वो पढ़ना खुद से ही नहीं चाह रहे और ना ही फैमिली चाहती है, तो उनको फिर हम कैसे इंस्पायर करें कि वो पढ़े? बच्चा भाग गया वो मेरे पास से, वो सामान भी लेकर नहीं गया। ये मोटिवेशन का अभाव रहा है, पहली बात। दूसरा कि जो है उन माँ पिताजी जो भी उसके रहे होंगे, उनको लगता है कि ये कहीं भी काम करेगी तो 10 रुपये रोज़ तो लेकर घर आएगी, परंतु 10 रुपये से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी शिक्षा भी है, उसके साथ साथ उसकी शिक्षा भी है
ये विचार उसके मन में कैसे खड़ा किया जाए, तो ये एक दिन में नहीं हो सकता, लगातार के प्रयास से होगा। उसमें कुछ छटेंगे भी, ये भी बात पक्की है। परंतु अब लीजिए, अभी कुछ दिन पहले एक छोटी सी बच्ची कचरा ढोती, कचरा बिन कर जा रही थी, तो नज़र पड़ गई, उसको बुलाया, मैंने उसको कपड़े भी दिए, कंबल भी दिया, बाकी दिया। फिर उसको कहा कि यहाँ रहोगी क्या? छोटी सी बच्ची थी, बड़ी प्यारी सी। तो उसको अपनी वो झोपड़ी पसंद है जहाँ वो रहती, वो मेरे पास नहीं रह सकती। किसी की भी बच्ची हो, आप ला के एसी में उसको भी रख दीजिए, सब सुख सुविधा दे दीजिए, परंतु वो अपने माँ बाप के पास ही रहना पसंद करेगी, क्योंकि उसको प्रकृति का नियम है कि वो माँ बाप से ज़्यादा नज़दीक अपने को महसूस करती है, भले वो रात में खाने को उसको एक टाइम ना मिलता हो। तो ये उनके जीवन में बदलाव कैसे आए, ये एक सोचने का प्रश्न है। आज हमारे यहाँ भी जैसे अभी तक हम सब चीज़ निःशुल्क हम सेवा करते हैं, कोई चार्ज नहीं करते, उसके बावजूद हमारे पास हज़ारों की संख्या में लोग हैं जो आ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास आने का भाड़ा भी नहीं होता। उनको यहाँ तक हम नहीं बता पाते कि तुमको भाड़ा नहीं, तुम आ तो जाओ, भाड़ा हम दे देंगे, उसके बावजूद भी वो नहीं आ पाते। किसी के घर में यदि कोई वैसी विकलांग बच्ची पैदा हो गई, धीरे धीरे बड़ी हो गई, 10 साल 12 साल 14 साल की हो गई, तो उसके माँ बाप की स्थिति क्या होती है कि वो दोनों दिहाड़ी मजदूर हैं, रोज़ काम पर जाते हैं, तो एक टाइम माँ जाएगी, एक टाइम बाप जाएगा। घर में छोड़ नहीं सकते इनसिक्योरिटी के कारण। वैसी स्थिति में पूरी ज़िंदगी उनको जीनी है, उनको हम फ्री में सब सुविधाएं देने के बावजूद वो मेरे पास नहीं आ सकता कि यदि सवेरे हम काम नहीं करेंगे तो शाम में खिलाएंगे क्या, ये उनके लिए समस्या होती है। तो उनके लिए कितने एंगल से परेशानियां होती होंगी, इसको भी एक सोचने का है। हम उसका समाधान कैसे करें, कितना कर सकें, छोटा ही करें परंतु करने की कोशिश करें। ये एक आज हमारे बच्चे ने तकलीफ़ नहीं देखी है, उसका नतीजा ये होता है कि वो बाज़ार में जाएंगे तो कहेगा कि दादा आइसक्रीम खिला दो, 20 रुपए की आइसक्रीम हम खिला देते हैं। परंतु जब वो ऐसे बच्चों के बीच जब जाता है तब उसकी दिशा बदलती है कि दुनिया में ऐसे बच्चे भी हैं जो अपंग हैं, चल नहीं सकते हैं, उसके माँ बाप उसके लिए सब कुछ समय देने की कोशिश करते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रयास धीरे धीरे मन के ऊपर उस बच्चे के भी असर करता है, दोबारा वो आइसक्रीम आपसे नहीं मांगेगा। अभी कुछ दिन पहले, 5-7 दिन पहले हमारे अस्पताल का सिल्वर जुबली ईयर था, 25वां साल। वहाँ पर चर्चा मीटिंग थी, बाकी सब चर्चा चल रही थी। तो एक सिस्टम हमने बनाया है दिव्यांग मित्र परिवार ऐसा करके, कि कोई यदि 100 रुपये महीना भी देना चाहे तो वो कंट्रीब्यूट करे, देने की आदत डाले। तो मेरे दोनों पोते और पोती है, दोनों घर आकर कहेगा कि जो है फॉर्म लेकर आए वहाँ से कि इसको भर कर हम जो है 100 रुपया महीना देंगे। बात छोटी सी थी, परंतु अब वो 100 रुपया देना इम्पोर्टेंट नहीं था, उसके मन में जो ये बात आई कि इस काम के लिए कुछ न कुछ किया जाए, तो एक बड़ी बात हो जाती है। निर्माण जो है इसी ढंग से छोटी छोटी बातों का, क्योंकि हम सबको लेने की आदत है, देने की कम। मैं, मेरा परिवार, मेरे सब कुछ, उससे थोड़ा सा ऊपर उठे, थोड़ा सा जो है तो चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद आपका। हाँ, और कोई? आपकी पहली सक्सेसफुल सर्विस क्या थी ऑर्गन डोनेशन? कैसी ऑर्गन डोनेशन में आपने स्टार्ट किया अपना ऑर्गेनाइजेशन, तो पहली सक्सेसफुल सर्विस आपकी हुई? अभी तक 1300 कॉर्निया दान हुआ है। अभी हम सिर्फ कंसंट्रेट कर रहे हैं बिहार के अंदर। बिहार के अंदर प्रतिवर्ष 11,000 कॉर्निया की ज़रूरत है, परंतु मात्र 1300 अभी तक हम दे पाए हैं। आने वाले दिनों में लगातार प्रयास कर रहे हैं, अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करते हैं, लोगों से संकल्प की बात करते हैं कि आप
संकल्पित हुई है। मृत्यु तो कब होगी किसी को पता नहीं, परंतु घर वालों को भी पता हो गया कि हाँ इन्होंने ऐसा कुछ दान करने का संकल्प लिया था, मृत्यु के बाद वो हो जाए तो ये एक अच्छी बात है। ये एक शुरुआत जो है। अब मैं बताऊं कि अब सबसे पहला नेत्रदान मेरी बहन का हुआ था बिहार के अंदर। उस दान में होने के पश्चात उस पूरे परिवार के लोगों को ऐसा लगा कि जैसे हमने कोई बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है, जब उनको ये पता चला कि इन आँखों से 2 को रोशनी मिलने वाली है। जब ये एहसास होने लग जाता है, क्योंकि अपने समाज के अंदर बहुत सारी रूढ़िवादिता भी रहती है कि यदि हम आँखों का दान करेंगे तो अगले जन्म में आँख अंधी पैदा होंगे, या ऐसा एक स्वाभाविक, यदि हमने उसका दाह संस्कार नहीं किया तो उसकी आत्मा भटकती रहेगी और हम लोगों को तंग करेगी। ये भी विचार आता है मन के अंदर। अब मेडिकल कॉलेज के अंदर जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको एक डेड बॉडी के ऊपर उनका प्रैक्टिकल होता है। आज स्थिति यह है कि अमेरिका में नकली शरीर के ऊपर रिसर्च होता है, पढ़ाई होती है, प्रैक्टिकल होता है। उनको डेड बॉडी नहीं मिल पाती है। अपने देश के अंदर भी एक बॉडी के ऊपर पूरे 5 साल के टेन्योर में 40 बच्चे के ऊपर एक बॉडी के ऊपर वो रिसर्च कर पाते हैं, दोबारा उनको बॉडी नहीं मिल पाती। क्या हम मृत्यु के पश्चात शरीर का दान कर सकते हैं क्या, जिससे कि मेडिकल के विद्यार्थी एक अच्छे डॉक्टर बन के निकल सके? इसमें योगदान कर सकते हैं क्या? क्योंकि उसके ऊपर अनुसंधान करने के लिए प्रैक्टिकल जानकारियाँ होनी जरूरी है। ये बात बड़ी छोटी सी दिखती है, परंतु बहुत इम्पोर्टेंट है। अब तो भारत सरकार से लगातार प्रयास करने के बाद MBBS के फर्स्ट ईयर के कोर्स में इसको डालने की बात चल रही है। इसमें NCERT की किताबों में भी अंगदान को लेकर एक बड़ा विषय खड़ा होने लगा है। अभी कुछ दिन पहले 3 अगस्त को भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने भारतीय अंगदान दिवस की घोषणा की। इसका मतलब है कि डे बाय डे इम्पोर्टेंस इन चीज़ों का बढ़ता जा रहा है। हम सब लोग एक अच्छे नागरिक के रूप में अपना कर्तव्य निभाएं, देश को समृद्ध और सशक्त बनाने में योगदान दें। आप मात्र कल्पना कीजिए कि आपके घर में किसी को किडनी या लीवर की ज़रूरत है, तब आप क्या करते हैं? आप अपनी पूरी संपत्ति बेचकर भी जो है, राइट और रॉन्ग, कैसी की किडनी मिल जाए, कोई गरीब आदमी की किडनी मिल जाए, चुपके से हम उससे पैसा देकर किडनी ले लें। और आप सुनते होंगे किडनी एक बड़ा रैकेट देश के अंदर चलता है, क्योंकि जिसको नहीं मिलता है और संपन्न है तो कोई भी पैसा देकर, कितना ही पैसा उसको चाहिए वो देकर उससे लेने की कोशिश करता है। बंगाल के अंदर जितने बांग्लादेशी आते हैं, गरीब आते हैं, उसके 50,000 रुपये दे दिया, लाख रुपया दे दिया, उसकी किडनी निकाली और 50 लाख में बेचते हैं। लेने वाले लोग लेते भी हैं। तो इन सब चीज़ों से निजात भी पाएँ, और जो भी गरीब से गरीब आदमी को भी यदि किडनी की, हार्ट की, बाकी की प्रॉब्लम है तो वो उससे मिल सके। अभी सूरत की जो बात की मैंने, एक 6 महीने की बच्ची का हार्ट दूसरे में ट्रांसप्लांट हुआ था, क्योंकि वो बच्ची बचने वाली नहीं थी, तो उसके परिवार के लोगों ने डोनेट किया और डोनेशन से ये लाभ मिला कि जो है दूसरे को जीवन मिला। आज एक बड़ा आयोजन वहाँ के माध्यम से लगातार चलता है। बात बड़ी जो है, लगता है कि ये जीवन के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब आपको ये महसूस होगा कि हमारे पड़ोस में किसी को आपके माध्यम से आँखों की रोशनी आ गई, तो आप बहुत पुण्यशाली अपने को मानेंगे। इसलिए जीने का थोड़ा सा तरीका बदलेंगे तो ज़िंदगी खुशनुमा हो जाएगी, नहीं तो आप हमेशा गरीब महसूस करेंगे अपने को। जी, और कोई? जी,
नहीं, अब तो इंटरनेट के ज़माने में तो अब सेंट्रलाइज किया। अब तो आप लोग, हम लोग के समय में गूगल भगवान नहीं था, आज तो गूगल भगवान है। आप रिसर्च करें, एक से एक आपके मन के मुताबिक अलग अलग ढंग के प्लेटफॉर्म्स आपको मिलेंगे, खूब मिलेंगे। हम लोगों के समय में तो गूगल नहीं था, जानकारियाँ सीमित थी। आज तो गूगल ने भगवान का रूप ले लिया है। सच में यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको सब चीज़ों के लिए चीज़ें मिलेंगी। अभी बालासोर में भी रेल दुर्घटना हुई थी, उड़ीसा के अंदर काफ़ी भयंकर दुर्घटना हुई थी। जैसे दुर्घटना हुई और अखबारों में लगातार आ रहा था कि वो डब्बे के ऊपर डब्बे चढ़ गए, लोग अपंग हो गए, बहुतों का हाथ पैर वगैरह डैमेज हुआ, कट गया। कल ही परसों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई, वहाँ से एक प्रोफेसर आई हुई थी, उनसे बातचीत हुई हमारी। उनको जब ये पता चला कि इस संस्था ने, जिस संस्था के पास आए हैं, इन्होंने घटना के तुरंत बाद भारत सरकार को, हेल्थ डिपार्टमेंट को, रेलवे को लिख कर दिया हमने कि जितने भी वैसे अपंग मरीज हैं उन सब को आप मेरे यहाँ भेज दीजिए, हम उनका पूरा इलाज करेंगे, इवन आने जाने का भाड़ा भी उनको देंगे। कारण उसका क्या था, क्योंकि जो प्रॉब्लम हम महसूस कर रहे थे कि एक्सीडेंट होने के बाद जो भी सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो तो उनका हो जाएगा, सर्जिकल ट्रीटमेंट के बाद जो अंग उसके अपंग हैं, कट गए हैं या डैमेज हो गए हैं, 6 महीने के बाद सरकार या जो भी सरकारी महकमा है वो उतना संवेदनशील नहीं होगा कि अब ये अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो सके। तब मैंने ये बात कही थी क्या कि और जब तक उसका घाव नहीं भरेगा, घाव भरने में 6 महीना 4 महीना कम से कम लगेगा। उसके बाद मैंने कहा था कि जितने हो सकते हैं 25, 50, 100 सब आप मेरे यहाँ भेज दो। तो वही परसों जो प्रोफेसर आई थी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम जो है आपसे फिर मिलते हैं और वैसे लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। तो काम ढूंढना भी, खोजना भी एक जो है बड़ी बात हो जाती है। अब वो केरला की एक ग्रामीण एकदम आदिवासी महिला, उसको ज्ञान है पौधों का, मेडिसिनल पौधे जो औषधि में काम आते हैं, उनको लेकर वो अलग अलग गांवों के अंदर नर्सरी चलाती है, पढ़ी लिखी कुछ नहीं है, अंगूठा छाप। उसको भारत सरकार ने पद्मश्री दिया। कैसे ढूंढा होगा इसके, क्योंकि वो तो न पढ़ी है, न लिखी है, न अप्लाई कर सकती है, न उसके बारे में किसी को जानकारी हो सकती है, परंतु सरकार ने उसको ढूंढकर उसको सम्मानित किया। हम लोग भी बहुत क्षेत्र है जिस पर कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और हम लोग आपकी रुचि के मुताबिक जो कर सकते हैं उसकी शुरुआत जरूर करें। एक उम्र के बाद करेंगे, इस बात को माथे से निकाल दें। रोज़ भगवान का नाम लेते रहिए, रोज़ राम का नाम लेते रहिए, तभी जो है राम राम आप कह पाएंगे। नहीं, कभी कभी लेने की स्थिति होगी तो मरा मरा मुँह से निकलेगा। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए कुछ कुछ हमेशा अच्छा साथ में जोड़ते जाइए। धन्यवाद। Sir, we can't take more questions. Thank you so much, sir, for giving us your valuable time and also sharing your experience and knowledge with us. I would also like to thank the audience for being with us, and I would like to tell you all about our tomorrow's event. Tomorrow we are going to have an interactive talk in the same lecture hall from 5 p.m. With Dr. Radhakrishnan Pillai on the topic of evolution of rich Indian heritage. Then we have a spiritual music at 8 p.m. in L7. So all of you are invited. Please give us your time. So yeah, thank you, sir, and thank you everybody for listening.